Hello everyone, we are starting next unit, that is neural network. So we discuss what is meant by artificial intelligence. What is our aim? Aim of artificial intelligence is incorporate intelligence in the machine, that is to make machines intelligent. And we discuss various areas of artificial intelligence, that is neural network is there, then fuzzy logic is there, fuzzy logic we discuss, and third area we discuss is genetic algorithm. So this unit is all about neural network. Again, neural network is our brain is made up of cells, we call it as neurons. So there are number of neurons in the human brain, and because of that neurons or because of that neural network in our human brain, we are getting intelligence. So the aim of neural network, artificial neural network, is to incorporate that structure like neurons in the machines so that machines could act intelligently. This is about neural network. Okay, now we are starting with the neural network. So before starting with artificial neural network, we should know how our brain works, that is human brain, or we can say we call it as a biological neural networks. The neural network is divided into two types: artificial neural network and biological neural network. Biological neural network means human brain structure, and artificial neural network means human brain structure को follow करके जो network बनाया गया है, that is nothing but artificial neural network. Okay, now I am sharing with you this first topic of this chapter, that is biological neural network. स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सिंगल बायोलॉजिकल न्यूरॉन, ये हमें डिस्कस करना है, ये हमारा पहला टॉपिक है. तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन में होता है. ANN इज इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम, दैट इज ह्यूमन ब्रेन से ANN सिस्टम इंस्पायर्ड हुआ है. ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एटॉमिक and functional subunits, each having certain tasks like vision, hearing, motor and sensor control. So हमारे बॉडी में जो various organs है, these are acting as a sensory organs, like we can smell, we can taste, we can see, and we can sense the touch, and based on that our brain takes action. For example, you touch to some hot vessel, in that case because of reflex action your hand will be immediately removed from that hot vessel. This is nothing but the signals are generated and electric impulses are created, and your brain is reacting to the act and it is giving a reaction. So we are discussing how it is happening. The brain is connected by nerves to the sensors and actors in the rest of the body. So हमारे बॉडी में जो सेंसर्स होते हैं और एक्टर्स होते हैं वो सब नर्व से कनेक्टेड होते हैं. ये जो है वो हमारे सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे देखो, ब्रेन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. तो ये एक सिंगल न्यूरॉन दिया है. ऐसे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन आवर ह्यूमन ब्रेन एंड देयर इंटरकनेक्शन विल मेक अस will let us to make the decision. यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे डेंड्राइट्स है, these are the dendrites. ओके, देन ये एक सिंगल सेल है, ये सेल की बॉडी है, ये न्यूक्लियस है. अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होता है तो कोई भी सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस होता है सेंटर में और उसकी बॉडी होती है. वैसे ही ये न्यूरॉन इज नथिंग बट अ सेल, ये उसकी बॉडी है. दिस पार्ट इज अ बॉडी एंड दिस पार्ट इज अ न्यूक्लियस. और ये जो ब्रांचेस निकले हैं उसको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं. और यहाँ पे देखो, ये एक्सॉन है और ये जो ब्रांच ट्री लाइक ब्रांचेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं. सो ये सिंगल न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरॉन्स के साथ थ्रू एक्सॉन्स कनेक्टेड होता है. हर एक सेल को जो है वो एक ही एक्सॉन होता है और
इसके जो आउटिंग ब्रांचेस है वो अदर सेल्स के, एक तो सेल बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे या डेंड्राइट्स थ्रू सेल के साथ कनेक्ट होंगे और उनका इंटरकनेक्शन क्रिएट होगा. When one cell wants to communicate with another cell, a signal is passed from one cell to another cell and that signal act like electric impulse to make a connection. So ये मैंने आपको अभी ओरली बताया है, यही मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है. पहला पॉइंट मैं पढ़ती हूँ. Dendrites are thin and widely branching fibers. So these are thin and widely branching fibers reaching out to make connection with other cells. ये डेंड्राइट्स थ्रू अदर सेल्स के साथ कनेक्शन होता है. अदर सेल का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके डेंड्राइट्स होते हैं और उसका एक्सॉन होता है. इनपुट कनेक्शन इज मेड फ्रॉम द एक्सॉन्स ऑफ अदर cells to the dendrites or directly to the body of the cell. These are known as synapses. So ये जो है वो synapses है. There is only one axon per neuron. It is single and long fiber which transport the output signal of cell as electrical impulses. जो भी आउटपुट सिग्नल है या फिर जो सिग्नल दूसरे सेल को भेजना है वो जो होगा वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में होगा along with the its length. ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन. I hope this is clear to you. Now we are discussing what is the function of this biological neuron. Function of biological neuron. The neurons perform basically following function. All the inputs to the cell, which may vary by the strength of the connection or the frequency of the incoming signal, are summed up. मीन्स जो भी इनकमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं उसका समेशन होता है. उसके बाद में क्या होता है, द इनपुट सम इज प्रोसेस्ड बाय अ थ्रेशोल्ड फंक्शन. थ्रेशोल्ड फंक्शन मीन्स क्या होता है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या होती है कि एक कोई तभी आप वैल्यू कंसिडर करते हो उसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं और वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज पर्टिकुलर वैल्यू इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, अबोव दैट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि रिजल्ट, जैसे कि 40 आपका कोई भी रिजल्ट है तो आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है 40, दैट इज थ्रेशोल्ड इज 40. सो 40 के अबो अगर किसी स्टूडेंट को मार्क्स है तो वो पास है, 40 के बिलो है तो वो फेल है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड फंक्शन और थ्रेशोल्ड वैल्यू विच इज यूज टू मेक द डिसीजन. सो ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो भी इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो सम अप करके उसको थ्रेशोल्ड फंक्शन अप्लाई होता है और आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है. दिस इज अबाउट फंक्शन ऑफ ब्रेन. आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि जो भी डिफरेंट इनपुट्स ब्रेन को मिल रहे हैं थ्रू आर सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, वी कैन स्मेल, वी कैन टेस्ट, वी कैन सेंस, वी कैन हैव विजन. सो ये जो है ऑल आर सेंसरी ऑर्गन्स और ये सेंसरी ऑर्गन्स थ्रू जो इनपुट्स हमारे ब्रेन को जा रहे हैं उससे हम लोग हमारा ब्रेन जो है कोई थ्रेशोल्ड फंक्शन होता है या फिर जो प्रीवियसली यूज्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेस्ड कुछ डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है. दिस इज बेसिक वर्क ऑफ द थ्रेशोल्ड फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल आप you are walking on the street and you find some pithole on the street. In that case you will change your way of walking because you know if you go in the same way you will fall down in that pit. So this is nothing but working of the brain. Now I think this is clear to you. We started with unit 3. We discussed what is neural network. Then we discussed there are two types, biological neural network and artificial neural network. ये वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स से बना हुआ है और बायोलॉजिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के फंक्शंस क्या है. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके टेक्सोनॉमी क्या है. टेक्सोनॉमी मीन्स व्हाट, कि उसके टाइप्स क्या है. सो ये सब टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी ये वीडियो में सिर्फ हमने
बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन डिस्कस किया है. रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.